ننگلی تارزو سوپور میں دریا جہلم اور وولر جھیل سے ریت کے غیر قانونی نکاسی کا عمل جاری ہے۔ حالانکہ متعلقہ محکمے کے افسران ریت مافیا کے خلاف کارروائی کے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تاہم زمینی سطح پر اس کا اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ ریت مافیا جہلم کے باندھ کو نقصان پہنچانے کے بعد اب خوبصورت وولر جھیل کی تباہی کے در پر ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ ڈی سی اور دیگر متعلقہ حکام کو اس کی جانکاری دی، تاہم غیر قانونی سرگرمیاں روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ریت مافیا کے اقدام سے نہ صرف دریا کے باندھ تباہ ہوں گے بلکہ وہ مہنگے داموں میں اسے فروخت کریں گے۔ وہیں اے ڈی سی سوپور نے نیوز 18 نمائندے سجاد حسین کو بتایا کہ وہ اس معاملے پر بہت جلد میٹنگ منعقد کریں گے اور اس غیر قانونی سرگرمی کو روکنے کے اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آبی ذخائر پر ناجائز تجاوزات کو روکنا انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ حالانکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس سے پہلے کئی مرتبہ غیر قانونی سرگرمیوں پر پابندی کے حوالے سے کئی احکامات جاری کیے گئے ہیں، تاہم عملی طور پر مناسب اقدامات دیکھنے کو نہیں ملے۔ وہ حال میں ہم نے سینٹرل اوقاف کی طرف سے بھی ان کو لیٹر بھیجے، اس میں پوری شکایت بھی لکھی ہم نے کہاں کہاں پہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے۔ اس میں وہ کرتے ہیں، وہ سلٹ لفٹنگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ سینڈ ایکسکیشن کرتے ہیں، بنڈ کھسک جاتا ہے۔ جو بھی اس میں سینڈ مافیا ملوث ہے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ اب پتہ نہیں اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہی، کیا معاملہ ہے۔ ان کے خلاف بھی ایف آئی آر لگا ہوا ہے۔ ایس ایس پی سوپور کو آرڈر ایشو کرے، ان سب کو گرفتار کر کے جیلوں میں بار ڈالے اور جو ان کے جتنے بھی ٹریکٹر وغیرہ ان کو سیل کیا جائے۔ ایک مافیا چل رہا ہے جہاں سے اس کی ریت نکالی جاتی ہے یا جو باندھ تھا اس پہ وہ انکروچمنٹ کی گئی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر 2014 جیسا یہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے تو پورا یہ ایریا سوپور تارزو یہ پورا ڈوب جائے گا۔ اس پہ میری یہی ریکویسٹ ہے، چاہے اے ڈی سی لوکل ایڈمنسٹریشن ہو یا ڈی سی صاحب ہو، جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان سے وہ پوچھ تاچھ کرے، کیونکہ ان کی نظر میں ہوتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ میں ہوتا ہے، کیونکہ کسی کی ڈپارٹمنٹ کے بغیر ایسے کام نہیں ہوتے۔ 100 ٹریکٹر لگے ہوتے ہیں وہاں پہ یا باقی چیزیں وہاں سے نکالی جاتی ہے۔ میں نے جو کنسرن تحصیلدار صاحب ہے ان سے بات بھی کی ہے، بٹ اسٹل ابھی جو ایکشن لینی ہے وہ پوری طرح سے ابھی تک ہم نہیں لے سکے۔ بہت جلدی جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بلا کے ہم اس کو بہت ہی زیادہ پرائیورٹائز کریں گے، کیونکہ یہ انوائرمنٹ کا کنسرن ہے، فلڈس کا کنسرن ہے، لوگوں کے جو وہاں جن کا ہیبیٹیٹ ہے وہاں پر ویری امپورٹنٹ کنسرن ہے۔ تو آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجیے، میں ان کے ایک میٹنگ لے کے تھوڑا ان سے ویو پوائنٹ لے کے ہم ضرور ایک ایکشن لے لیں گے تاکہ یہ بیڈ پریکٹس سٹاپ ہو جائے۔ سرکار کے سیلف ہیلپ گروپ کوٹے کو ختم کرنے کے حکم نامے کی مخالفت میں سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ افراد نے اچھابل اننت ناگ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سیلف ہیلپ گروپ میں شامل انجینئرز و دیگر ڈپلوما ہولڈرز نے کہا کہ سرکار کا یہ حکم نامہ ان کے مستقبل کو تاریک بنا دے گا، کیونکہ سرکار پہلے ہی انہیں سرکاری نوکریاں فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ایسے میں سیلف ہیلپ گروپ کے کوٹے سے وہ مختلف تعمیراتی کام کاج انجام دیتے تھے جس سے ان کی روزی روٹی چل رہی تھی۔ اس کی وجہ سے لگ بھگ 20 سے 25 ہزار جو ہماری فیملیاں ہمارے ساتھ منسلک ہے ان کو ایک بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ ہم مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بخوبی واقف ہے یہ ہماری روزی روٹی تھی، اس کو آپ چھیننے کی کوشش مت کریں، کیونکہ ایک طرف سے آپ ہمیں یہ وعدے دے رہے ہیں کہ یو ٹی میں ایسے قانون لاگو ہوں گے جس میں کسی انسان کو پرابلم نہیں ہوگی، لیکن اس آرڈر کی وجہ سے ہم سفر فیل کر رہے ہیں۔ یہ اچھے طریقے سے کام انجام دیے، آپ ہماری ورکرز پرفارمنس بھی چیک کر سکتے ہو، بٹ راتوں رات نہ تو آپ نے ہمیں کنسلٹیشن میں لیا، نہ تو آپ نے اس سیلف ہیلپ کے کسی اسٹیک ہولڈر سے بات کی، آپ نے یہ جو ہمارا کوڈ تھا اس کو ایبالش کر دیا۔ ہمارے پاس اب کوئی راستہ ہے ہی نہیں، نہ تو آپ کوئی نوٹیفیکیشن نکال رہے ہو، نہ تو ہمارے پاس کوئی امپلائمنٹ کا چانس ہے۔ اب ہم کریں تو کریں۔ سیلف ہیلپ گروپ کو برخاست کرنے کے فیصلے کے خلاف شوپیاں میں بھی احتجاج کیا گیا۔ سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ بے روزگار انجینئرز نے احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کورونا وائرس سے وہ پریشان ہے، ایسے میں حکومت کے اس فیصلے سے ان کی مشکلیں مزید بڑھ جائیں گی۔ انہوں نے یہ فیصلہ واپس لینے کی مانگ کی۔ اچانک سے اس اسکیم کو ایبالش کرنا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم سڑک پہ آ جائیں گے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی بھی آلٹرنیٹو نہیں ہے۔ ہم اپنا جو بھی بریڈ بٹر یا جو ہمارا اس میں مطلب سیکورٹی وغیرہ تھی یا ہم کچھ کما رہے تھے تو اسی اسکیم سے کما رہے تھے۔ ہم سر بہت زیادہ محنت کر رہے تھے، لیکن اب انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے یہ آرڈر نکال کے ہمیں پتہ نہیں کس چیز کے لیے مجبور کر دیا۔ ہم آنریبل لیفٹیننٹ گورنر سے بہت زیادہ ہمبلی ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس آرڈر کو مہربانی کر کے واپس لیجئے۔ ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ آپ انصاف کر۔
सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम को सरकार की तरफ से खत्म करने के फैसले के खिलाफ कुपवाड़ा में इंजीनियरों ने एहतजाज किया। इनका कहना था कि स्कीम को खत्म करने के साथ इनका रोजगार खत्म हो गया है और कोरोना वबा के हालात में इस तरह का फैसला तालीम याफ्ता इंजीनियरों के लिए नाइंसाफी के मुतरादिफ है। लिहाजा सरकार को फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी करना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे 2004 से इस स्कीम में काम कर रहे थे। आज इन्होंने एक ही दम ऑर्डर निकाला कि हम सबों को अनएम्प्लॉय कर दिया इन्होंने। तो इसके बारे में हमारी ये अपील है ऑनरेबल गवर्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमारी अपील है कि इसको रोल बैक करें। इस 10,000 से लेकर 15,000 तक लड़के फैमिलियों का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। पूरा हम इस पर एहतजाज करेंगे क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे? तकरीबन 50-70% जो इंजीनियर्स हैं वो इस वक्त ओवर एज हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से सेल्फ हेल्प ग्रुप को बंद किए जाने के बाद कठुआ में इंजीनियरों ने डीसी ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत पर नौजवानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। इंजीनियरों के मुताबिक कई नौजवानों ने नौकरियों को छोड़कर लोन उठाया और स्कीम के तहत काम शुरू किया था। नौजवानों के मुताबिक हुकूमत के इस फैसले से जिले के तकरीबन 5,000 नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। करते ने डिवेलपमेंट दियां केरी डिवेलपमेंट है सानू इंजीनियर है ठेकेदार है एक साल हो जा हरासमेंट करते हुए क्रैशर बंद न अह कम ले देन दफ्तर वाले PWD दफ्तर वाले और दफ्तर वाले सानू नोटिस ऊपर नोटिस भेजा देन कि काम शुरू करो क्रैशर बंद न सानू मटीरियल नहीं मिला दा। अज इन्हें परसों का आर्डर कढ़िया कि जेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर स्कीम है वो बंद करी दी है। अह लोग लिमिटा ले दी 12 लाख रुपया मेरे पर लोन है। अगर तुम्हें स्कीम ही बंद करी दी मैं अपना लोन कुत्थों भुगतागा। डिमांड कर रहे हैं 4 साल से कि हमें अपग्रेड किया जाए, हमें अपग्रेड, लेकिन अपग्रेड करने के बजाय हमारी ये पॉलिसी लैप्स कर दी, हमारे सपनों को चूर चूर कर दिया। हमें रात को नींद नहीं आ रही कि हमने बैंक का लोन देना है, हमारी मशीनरी खड़ी होगी, हमने ड्राइवरों की सैलरी कहाँ से देनी है। न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे की पहल की खूब सताइश की जा रही है। नामवर और उभरते गुलकारों ने इस शो को अच्छी पहल करार दिया और कहा कि इससे वादी के नौजवानों को बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया होगा। इन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों को अपने हुनर का लोहा मनवाने के लिए ये सुनहरी मौका है। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे नए फनकारों को मौका मिलेगा आगे जाने का, क्योंकि आपको पता है कि रेडियो टेलीविज़न में नए फनकारों को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे अप्रूव्ड फनकार ही जाते हैं प्रोग्राम्स के लिए। पहले हुआ करते थे 1-2 प्रोग्राम्स जो यूथ प्रोग्राम्स कहलाते थे, आजकल वो नहीं है। आजकल सभी बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं और सारे बच्चे इंटरनेट से सीख के म्यूज़िक सीखते हैं, गिटार सीखते हैं, कीबोर्ड सीखते हैं। वो कोई गलत बात नहीं है, सीखना है, सबका काम आगे बढ़ना है, हमें यहाँ के म्यूज़िक को लेके आगे जाना है। इंशाल्लाह जो हमारी नई पौध है, जो यहाँ की जो नई जनरेशन है, वो बहुत ही अच्छा करते हैं। इतना कहूँगा कि वादी कश्मीर के लोग बिलखुसूस जो मौसीकी से वाबस्ता लोग हैं, जो हमारे यहाँ के नौनिहाल फ़नकार जो हैं, उभरते फ़नकार हैं, वो न्यूज़ 18 के बहुत ही मशहूर हैं कि उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म खोल दिया यहाँ बच्चों के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, टाइटल भी बहुत अच्छा है, कश्मीर के सितारे। मुझे उम्मीद है कि इसमें यहाँ के जो बच्चे हैं, न्यूज़ 18 अगर चाहेगा तो उनको वो आगे ले जा सकती है, उनको नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उनको मिल जाएगा। अगर हमारे बच्चे उसमें अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह न्यूज़ 18 उनके साथ साथ है और कश्मीर के सितारे जो प्रोग्राम है ये बहुत ही चमकेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप वादी कश्मीर के दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। वाज़ेह है कि फिल्मी नगमों को शामिल नहीं किया जाएगा, कश्मीरी फोक को तरजीह दी जाएगी। कश्मीर के सितारे का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज़ को बुलंद परवाज़ दीजिए। अपने वीडियो के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। तबले और नुट की थाप से जुड़ेंगे रबाब और जल तरंग, सारंगी और सितार के साथ मिलेगा संतूर का रंग, और झूम के गाएंगे आवाज के मलंग। कश्मीर में
साजो आवाज से निकलेंगे सुकून के धारे, जब झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। अगर आप में है साजो आवाज का हुनर तो अभी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में और जमाने को दिखा दें कि आप हैं कश्मीर के सितारे। जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। कोविड-19 के सबब जारी लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलवामा में आज जिला इंतजामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत आज कस्बा पुलवामा में खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद से जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान लोगों को मास्क पहनने की तलकीन की गई। पुलवामा में भी कोरोना वायरस के मुस्बत केसों के सबब लॉकडाउन में तोसी की गई है। रियासी के कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। कोरोना वबा के चलते गुज़िश्ता 2.5 महीनों से यात्रा को मनसूख कर दिया गया था, लेकिन यात्रियों के लिए कोविड गाइडलाइंस पर अमल को लाजमी करार दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने 16 अगस्त से तमाम इबादतगाहों और मुक़द्दस मकामात को खोलने का ऐलान किया है। माता वैष्णो देवी यात्रा के दोबारा शुरू करने के ऐलान से कारोबारी तबका खुश तो है, ताहम उनका कहना है कि दीगर रियासतों के ऐसे यात्रियों को इजाज़त दी जाए जो कोरोना टेस्ट में नेगेटिव हो। हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक 10 साल उम्र तक के बच्चों को सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। देखें, मैं समझता हूं कि पूरा वर्ल्ड इस वक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन खोलें और वो दर्शन के लिए आएं, इसके लिए बाहें फैलाए हुए खड़ा है। और मैं समझता हूं कि हर एक आदमी इसके लिए उत्सुक था और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मगर मेरी आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, श्राइन बोर्ड से और गवर्नमेंट जो जितनी भी एजेंसीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं, मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त रहेगी कि उन लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि अभी तक की SOPs के हिसाब से 4500 आदमी लोकल रखे हैं और 500 आउटसाइड स्टेट से जो है वो यहाँ आ सकते हैं। अब हमें बाकी स्टेट से सबक सीखते हुए, जैसे हिमाचल है, बाकी स्टेटों ने क्या रखा है कि आप कोविड का टेस्ट अपने घर में करवाएं और 72 घंटे तक आप आएँ और उसके अंदर अगर आप चले जाते हैं तो उनको कोई एतराज़ नहीं है और उसके हिसाब से बाहर के लोग जितने आना चाहते हैं उन्हें आने दें। अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस वैसे भी ये रहा है कि JNK के लोग वैष्णो देवी के यहाँ 2000, 1500 इससे ज़्यादा कभी नहीं हुए नवरात्रों को छोड़ के। इतना ज़्यादा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, हम बता नहीं आप सकते। पूरी स्टेट की इकनॉमी जो है कटरा के बिजनेस पर डिपेंड थी। कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, हर एक व्यापारी का कम से कम 1-1 करोड़ रुपया, खासकर जो हमारे ड्राई फ्रूट वाले भाई हैं, हम होटल्स हैं, बाकी छोटे मोटे जितने भी हमारे मजदूरदार भाई हैं, सबका बहुत नुकसान हुआ है। और ये नुकसान कम से कम 5 साल लग जाएंगे इसकी भरपाई करने में। कोरोना के साथ जीना सीखना है और जो भी सरकार की टाइम टू टाइम नॉर्म्स जो सरकार SOP तय करती है उसके मद्देनजर रखते हुए हम जो अपना जो व्यापार है दोबारा शुरू करेंगे। इकोनॉमी के तौर के हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया देख रहा हूँ। जो SOP जैसे हम देख रहे हैं, जैसे SOP माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से और DC मैम ने मिलकर जो बनाई है, गवर्नमेंट की हदायत है, जो जिस किस्म से वो कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो खोलनी थी। और जो प्रयास ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है कि एक बार यात्रा खुले, यात्रा खुलेगी तो रोज़गार खुलेंगे, यात्रा खुलेगी तो काम की एक स्पीड बनेगी, यात्रा खुलेगी तो यहाँ का कारोबार खुलेगा। हमारा कटरा जो है ये 99.9% जो है वो यात्री पे डिपेंडेंट है। बाकी जगह पे खुल भी गया है तो कटरा बिल्कुल नहीं खुला। मुझे पूरी उम्मीद है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जिस तरीके से तैयारियां कर रहा है और ख़ास तौर पे जो DC मैम हमारी लगी है, जिन्होंने बेहतरीन काम किया इस कोविड-19 में, और ये बहुत ही शुभ समाचार है कि यात्रा जो खुलने जा रही है। कैलाश यात्रा 2020 को कोरोना वबा के चलते मनसूख कर दिया गया है। 10 रोज़ा यात्रा को पहले ही 3 रोज़ का करते हुए सिर्फ छड़ी मुबारक को हयान रोड से ले जाने की इजाज़त दी गई है। भदरवा के छतरगला और हयान से यात्रा 8 अगस्त से शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना वबा के चलते मुलतवी की गई। ADC भदरवा के मुताबिक यात्रा से मुतालिक फैसला लेने वाले अहम फरीक़ैन ने मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र यात्रा को मनसूख करने का फैसला लिया है। जो कैलाश यात्रा है इस बार नहीं होगी, सिर्फ छड़ी मुबारक जो है वो जाएगी। तो उस छड़ी के लिए हमने मीटिंग करके जो कंसर्न्ड उसमें पार्टनर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की हुई है। तो उनको भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि सिर्फ जो मिनिमम लोग हैं जो छड़ी को लेके जाते हैं, आपको पता है छड़ी बहुत भारी होती है, वो 2-3 मंदिरों से छड़ी जाती है, तो उन लोगों की एक लिस्ट दे दें, उनको हम आई कार्ड्स इशू करेंगे तो वही लोग छड़ी लेके जाएंगे। उनका अरेंजमेंट प्रॉपर होगा, उनके साथ सिक्योरिटी होगी, उनके खाने पीने का जो अरेंजमेंट उनकी ट्रस्ट की तरफ से किया जाता है उसके लिए भी हमने आगे डायरेक्शंस दी हुई है लोगों को।
सिकचक बजौनी त्राल के लोगों ने आज खामोश एहतजाज किया। लोगों ने महकमे R&B से बजौनी से इनके इलाके तक राब्ता सड़क तामीर करने का मुतालबा किया। इनके मुताबिक इलाके में कई साल कबल महकमे RDD ने सड़क तामीर की है, लेकिन सड़क तंग होने की वजह से इलाके में कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती। इन्होंने महकमे से इलाके में जल्द सड़क तामीर करने का मुतालबा किया। बहुत प्रॉब्लम है इधर, हमारे कम से कम 30 घर इधर इस बस्ती में रहते हैं। हमें पानी की प्रॉब्लम भी रहती है और हमें रोड की प्रॉब्लम भी है। और जिस रोड से आप आए हैं, आपने ये रोड देखा होगा, इस रोड की हालत क्या है। और हमारे कोई गाड़ी आने जाने का साधन ही नहीं है। खुदा न खासा अगर आग का हादसा हो जाए या कोई हमारा पेशेंट बीमार हो जाए, हम उसको लेने के लिए बहुत मजबूर हो जाते हैं। फिर हमें उसे 4 पहिए उठा के उसको सड़क पर ले जाना पड़ता है और फिर हम इलाज के लिए उसको ले जाते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है SDM त्राल और DC पुलवामा से कि हमारे इस मसले को की तरफ नज़र डाली जाए और देखा जाए कि हमारी जो प्रॉब्लमें हैं इनको सिलवंतीपुरा में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मुकामी आबादी के मुताबिक अगरचे इलाके में राब्ता सड़क खस्ता हाल है, इलाके में पीने के पानी की भी शदीद किल्लत है। यहाँ के लोग खेती पर इन्हसार करते हैं, लेकिन आबपाशी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघुलांगर से इलाके का दौरा करने की अपील की ताकि वो लोगों के मसाइल जान सकें। मसल नंबर 1 सारे खोत बोड़ तो अहम मसल रोड जन वाहिद रोड जन नेशनल हाईवे सत रलावन, मगर चूंकि सैलबी सूरत हालस मज जबरदस्त मुश्किलात गसन, तमाम रबत सन तो वनुक तान करे अमे रोड खतर अपग्रेडेशन खतर या मरम्मत खतर या मेगडम खतर जबरदस्त कोशिश। यथ मज सबक MLA या मतलब बाकी अला हुकामन सत रबत गो, मगर वनुक तान आव न खास तवज्जो दिन। चन आबुच बड़ मुश्किलात तो यह स्कीम चलान, मगर तमिक फिल्ट्रेशन प्लांट तथ जाए आमुत बनाने कि तथ अंद पे सिर्फ मकरेर वगर शगर हु सह आब सठा गंद, बे तमिक आब सिर्फ नेसफ आबादी तानी वातान। गोस जामिया मस्जिद नजदीक अख वाटर रिजर्वायर बनाने यून ताकि गए मुश्किल हल। दोमी तरफ आब पोशी हूं अत जमीनस कम मौकूल इंतजाम। खबरों का सिलसिला